Hello everyone. In the last video, we completed the concept of Gyan in two school, Buddhism and Jainism. और आज हम उसे कंप्लीट करेंगे. उसमें पढ़ेंगे वेदांत में, अद्वैत वेदांत में, मीमांसा में, सांख्य में या न्याय वैशेषिक में ज्ञान का क्या कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्ञान इन सांख्य फिलॉसफी. So in Sankhya philosophy, the concept of knowledge holds a central position, serving as a crucial tool for understanding the nature of reality, the self, and the path to liberation. Sankhya, one of the oldest and most influential school of Indian philosophy, provides a systematic framework for analyzing the constituents of existence and explaining the principle of consciousness and matter. प्रकृति एंड पुरुषा, ये दो सब्सटेंस बताए गए हैं सांख्य फिलॉसफी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंडिंग अबाउट पुरुषा एंड प्रकृति. ज्ञान इन सांख्य इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंडिंग द फंडामेंटल डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. सबसे पहले तो समझना है कि जो सांख्य फिलॉसफी है उसमें दो सब्सटेंस है, पुरुषा दैट इज कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति दैट इज मैटर. और इसको समझना, इसका ज्ञान लिबरेशन के लिए बहुत जरूरी है. पुरुषा इज अ प्योर कॉन्शियसनेस डिवॉइड ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मॉडिफिकेशंस, while prakriti is the realm of material nature characterized by the three gunas sattva, rajas and tamas. ये तीन गुण प्रकृति में पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा सुख दुख का फॉर्मेशन होता है. देन sattva represent purity, clarity and harmony. Rajas represent activity, passion, restlessness, and tamas represent inertia, darkness and ignorance. So by understanding the qualities of gunas, individual can insight into the dynamic of the material world and cause of suffering. जिसके अंदर जो गुण ज़्यादा है, जो प्रभाव ज़्यादा है, वैसे ही उनमें कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स दिखते हैं. ज्ञान enables individual to discern between purusha and witnessing consciousness and prakriti, the realm of the material world. ज्ञान हमें इन सब की नॉलेज देता है जिससे रियलिटी को समझते हुए हम लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं. So by understanding the eternal unchanging nature of purusha and the transient ever-changing nature of prakriti, individual attain insight into the essence of reality. As I said, Gyan involves recognizing true nature of self, Atma, as distinct from the modification of prakriti. By understanding that the self is eternal, unchanging, and independent of material world, individuals attain self-realization and liberation from the cycle of birth and death. Gyan enables individual to transcend the influence of gunas and attain a state of equanimity and detachment. So by cultivating sattva and minimizing the influence of rajas and tamas, individual achieve clarity of mind and spiritual discernment, facilitating the path to liberation. तो सत्व का प्रभाव जब ज़्यादा होता है तो जो इंडिविजुअल है वो लिबरेशन के पाथ की तरफ बढ़ता है. देन अटेनमेंट ऑफ कैवल्य. कैवल मतलब लिबरेशन. तो ज्ञान लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ कैवल विच इज द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस एंड आइसोलेशन ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है. इन दिस स्टेट द इंडिविजुअल रियलाइज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड एक्सपीरियंस प्रोफाउंड इनर पीस एंड फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग. सो आप ये देख रहे हैं कि लिबरेशन हर इंडियन स्कूल में या हर भारतीय विचारधारा में एक्चुअली दुखों से छुटकारा है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा है. और वो जब हमें रियलिटी पता चल जाती है, हमें रियलिटी का क्या नेचर है वो पता चल जाता है, सफरिंग का नेचर क्या है, हम उससे कैसे छूट सकते हैं, इन सबकी नॉलेज लिबरेशन में बहुत हेल्पफुल होती है. So in Sankhya philosophy, Gyan represent the pursuit of knowledge as a means to transcend ignorance
and attain a spiritual realization and liberation. It involves understanding the duality of Purusha and Prakriti, the dynamic of gunas, and the true nature of self. So, through the cultivation of spiritual discernment and self awareness, individual gain insight into the essence of reality and achieve liberation from the cycle of birth and death. Gyan serves as a guiding light on the path to self realization and ultimate freedom. Further, Gyan in Yoga philosophy. In Yoga philosophy, rooted in the teaching of Patanjali's Yoga Sutra, the concept of Gyan plays a pivotal role in guiding practitioners towards inner transformation and enlightenment. योग फिलॉसफी जैसा कि नाम है, तो उसमें योग शब्द और योग अभ्यास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है जो लिबरेशन की तरफ ले जाता है। सबसे पहले ज़रूरत है अपने सेल्फ को समझने की। सो ज्ञान इन योगा फिलॉसफी इन्वॉल्व्स गेनिंग इनसाइट इनटू द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ और आत्मा एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल बॉडी, माइंड एंड ईगो. So through introspection and self-inquiry, practitioners recognize the eternal, unchanging essence of the self, which is inherently pure and luminous. Further, the realization of seer and seen, it is also important. Gyan enable individual to discern between the seer, that is Atma, and the seen, that is material world. So by understanding the distinction between consciousness and its object, practitioners develop detachment and cultivate inner stability amidst the fluctuations of external world. तो कहते हैं ना, योग इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ये पहचाने कि आप का नेचर क्या है, आप दूसरी फिजिकल थिंग्स से, अपने माइंड से, ईगो से किस तरह से डिफरेंट हैं, किस तरह से अलग हैं, और आपके अंदर जो मेंटल पीस है, जो स्टेबिलिटी है, वो आनी चाहिए. सो फर्दर, द कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट. ज्ञान encompasses the cultivation of wisdom, which arise from direct experiential insight into the nature of reality through the practice of meditation, concentration, or mindfulness. Practitioners develop the clarity of mind and deepen their understanding of the interconnectedness of all being. जब हमारा माइंड एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, हम मेडिटेशन के थ्रू, तो हम हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी आती है चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, और हम और अच्छे से उन चीज़ों को समझते हैं, और दूसरों से हमारा क्या कैसा संबंध है, कैसे हम उनको बैलेंस कर सकते हैं, वो सब समझते हैं. देन फर्दर, रिकॉग्निशन ऑफ द पाथ टू लिबरेशन. इसके थ्रू, ज्ञान के थ्रू हम कैसे लिबरेशन की तरफ जाते हैं. ज्ञान इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द पाथ टू लिबरेशन आउटलाइन इन द योगा सूत्र known as 8 limbs of yoga, that is Ashtang Yoga. Practitioners cultivate ethical discipline, yamas, niyam, आसन जो फिजिकल पॉस्चर हैं, ब्रीथ कंट्रोल जिसको प्राणायाम बोलते हैं, विड्रॉल ऑफ द सेंस प्रत्याहार, कंसंट्रेशन धारण, मेडिटेशन ध्यान, एब्जॉर्प्शन समाधि. सो टू प्योरीफाई द माइंड एंड अटेन यूनियन विद द डिवाइन. तो इनको फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं, लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं. So in yoga philosophy, Gyan represent a pursuit of spiritual knowledge as a means to attain self-realization and liberation from the bondage of ignorance and suffering. Through the cultivation of self-awareness, wisdom and discriminative knowledge, practitioners deepen their understanding of the nature of reality and experience profound inner transformation. Gyan serves as a guiding light on the path to enlightenment, leading individuals to the ultimate realization of their true nature and union with the divine. फर्दर आगे देखते हैं ज्ञान इन न्याय वैशेषिक फिलॉसफी.
So, Nyaya and Vaisheshik are two closely related school of Indian philosophy that provide systematic framework for analyzing the nature of existence and consciousness. Now, understanding reality through pramanas. न्याय फिलोसफी अपनी एपिस्टेमोलॉजी के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है और उसकी मेन फिलॉसफी जो है वो है रियलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसका परसेप्शन हो सकता है. सो न्याय वैशेषिक फिलोसफी रिकग्नाइज वेरियस प्रमाणास और मीन्स ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग परसेप्शन, जिसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, इन्फ्रेंस दैट इज अनुमान, कंपैरिजन दैट इज उपमान, वर्बल टेस्टमनी दैट इज शब्द एंड अनुपलब्धि. इस तरह से उसमें 6 प्रमाणास माने जाते हैं. ज्ञान इन्वॉल्व्स the correct application of these pramanas to gain valid knowledge about the nature of reality. कि हम रियलिटी को कैसे जानते हैं, इन प्रमाणास के थ्रू जानते हैं, परसेप्शन के थ्रू, इन्फ्रेंस के थ्रू. ज्ञान इन न्याय वैशेषिक encompasses the validation of spiritual teaching and intuitive understanding to discern the ultimate truth and the path to liberation. कि जब आपको अल्टीमेट ट्रूथ यानी रियलिटी पता चल जाएगी तो आप लिबरेशन की तरफ जाएंगे. सो प्रैक्टिशनर rely on direct perception, inference from spiritual teaching, as I said. And नाउ रिकॉग्निशन ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि जब आप रियलिटी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है. सो ज्ञान इंक्लूड्स डिसर्निंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. सेल्फ मीन्स आत्मा और नॉन सेल्फ है अनात्मा. So, by understanding the eternal, unchanging nature of the self and its independence from the material world, practitioners cultivate detachment and dispassion towards worldly phenomena. कि जैसे जैसे रियलिटी को समझते जाते हैं तो वो इस वर्ल्डली फिनोमिना जो हमें संसार दिखता है उसके प्रति हम हमारे अंदर त्याग की भावना आती जाती है और हम रियलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि सेल्फ क्या है, आत्मा क्या है, उसका नेचर क्या है और वही रियलिटी है. देन उसके बाद द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज फॉर लिबरेशन. तो कैसे ये बढ़ता है, तो ज्ञान सर्व एज अ मीन्स टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय कल्टिवेटिंग ट्रू नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड द अल्टीमेट रियलिटी. प्रैक्टिशनर्स ओवरकम इग्नोरेंस, अविद्या जिसको कहा जाता है, एंड अटेन फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट एंड डिजायर. तो जैसे जो बंधन है, लिबरेशन क्या होती है, बेसिकली बंधन से छुटकारा मिलना. बंधन किस चीज़ का, जन्म और मृत्यु की जो चक्र चलता है उससे छुटकारा मिलना. तो जैसे जैसे हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है, हमारी इग्नोरेंस हटती है, हमारी अविद्या हटती है और हम लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड. ज्ञान इन्वॉल्व्स द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, अंतःकरण शुद्धि, through the cultivation of virtues such as truthfulness, non-violence and compassion. तो इस तरह से हमारे अंदर जो सद्गुण आते हैं उससे माइंड प्योरिफिकेशन होता है. सो बाय प्योरिफाइंग द माइंड एंड ओवरकमिंग negative tendency, practitioners create the conducive condition for the spiritual realization and liberation. तो ज्ञान की ये भूमिका होती है मोक्ष में. इन न्याय वैशेषिक फिलॉसफी, ज्ञान रिप्रेजेंट द परस्यूट ऑफ वैलिड नॉलेज टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एज आई सेड, through the correct application of pramanas, understanding of ultimate reality, and cultivation of virtue. Practitioner or seeker depend their insight into the nature of the self and the universe. So, Gyan serve as a guiding light on the path to liberation, leading individual to the realization of their true nature and ultimate freedom from worldly bondage. Now, Gyan in Advait Vedant.
ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में। ज्ञान स्पेशली आत्मज्ञान या हम जिसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। अद्वैत वेदांत, one of the principal school of Vedanta philosophy, emphasizes the non-dual nature of reality and ultimate identity between the individual self and the ultimate reality, uh, Brahman. सो हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं अद्वैत वेदांत में ज्ञान की, तो हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, सेल्फ नॉलेज। ज्ञान इन अद्वैत वेदांत इन्वॉल्व द डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ आत्मन एज आइडेंटिकल टू ब्रह्मन, द अल्टीमेट रियलिटी। अद्वैत वेदांत में ज्ञान एक अनुभूति है, एक साक्षात्कार है। ये नहीं है कि आपको किसी चीज का ज्ञान हो रहा है, आपको ज्ञान हो रहा है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति। और वही रियलाइजेशन है दैट आई एम ब्रह्म। वो कहते हैं ना तत्व त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, महावाक्य जो बोले गए हैं। सो थ्रू सेल्फ इंक्वायरी एंड कंटेम्पलेशन individual recognize that their essential nature is pure consciousness beyond the limitation of body, mind and ego. Seekers realize that true self is not bound by time, space or causation and is inherently फ्री फ्रॉम ऑल लिमिटेशन। ये जो हमें ज्ञान होता है कि हमारा क्या नेचर है, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप क्या है, वो स्पेस, कॉजेशन या टाइम में बाउंड नहीं होता, वो सारी सीमाओं से फ्री है। सो ज्ञान इन अद्वैत वेदांत encompasses knowledge of Brahman, the ultimate reality that underlies the entire universe. Through scriptural study, जिसको हम श्रवण मनन नीति ध्यासन, ये 3 अंग हैं जिनके थ्रू ज्ञान प्राप्त करने में या ज्ञान के साक्षात्कार में मदद मिलती है। सो थ्रू श्रवण, मनन एंड नीति ध्यासन, श्रवण इज स्पिरिचुअल स्टडी एंड मनन इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट स्टडी एंड नीति ध्यासन डायरेक्ट रियलाइजेशन। सो थ्रू these 3 components, individual gain insight into the transcendental nature of Brahman as Sat Chit Anand, that is existence. Sat means होता है existence, चित्त means होता है consciousness, चेतना भी कहा जाता है इसको कहीं कहीं, and आनंद means होता है bliss। तो सत्य चित्त आनंद। Then recognition of non-duality. Gyan involves understanding that Brahman is the only ultimate reality and that all distinctions and duality perceived in the world are illusory. सारे भ्रम हैं, अविद्या के कारण हैं। Seeker realize that there is no separate individual self apart from Brahman and that the apparent diversity of creation is an expression of Brahman infinite potential. वो कहते हैं ना कि आधार है ब्रह्म, अधिष्ठान है, अगर वो ही नहीं हुआ तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा। हम उस पर इम्पोज कर देते हैं, ये जो हमें चीज़ें दिखती हैं, डुअलिटी जो दिखती है वो हम ब्रह्म पे इम्पोज कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। और जैसे ही वो इग्नोरेंस हटती है तो आत्म अनुभूति होती है और उससे मिलती है लिबरेशन। तो वो है पाथ टू लिबरेशन। ज्ञान सर्व एज अ प्राइमरी मीन्स फॉर अटेनिंग लिबरेशन इन अद्वैत वेदांत नोन एज ज्ञान योग और द पाथ ऑफ नॉलेज। सीकर engage or the practitioner engage in rigorous self-inquiry and contemplation to discriminate between the Brahman and the Atman, or the Brahman or the worldly phenomena, to dissolve the veil of ignorance that obscure the true nature of the self. अब हम ब्रह्म को कैसे जानते हैं या आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? That is, there's a way, there's a method. Neti neti, not this, not this. So Gyan involves the negation of all that is impermanent and transient, leading to the recognition of the eternal and unchanging nature of the self as Brahman. किसी चीज, क्योंकि ब्रह्म जैसा दूसरा कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी चीज की उपमा नहीं दे सकते, हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि ब्रह्म इसके जैसा है या ब्रह्म उसके जैसा है।
तो हम ब्रह्म को समझने के लिए क्या मेथड दिया गया है? नेति नेति, कि ये भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, आप सबको नकारते हुए जहां पहुंचते हैं, जहां आप स्टॉप हो जाते हैं, वहीं रियलाइजेशन होने की संभावना होती है. तो सीकर use the method of neti neti to negate identification with the body, mind, sense and ego, ultimately realizing their identity with the infinite and timeless reality. So in Advaita Vedanta, Gyan represent the direct realization of non-dual nature of reality and the ultimate identity between the individual self and Brahman. Through self knowledge and the recognition of Brahman as the sole reality, practitioner attain liberation from the cycle of birth and death and abide in the state of eternal bliss and freedom. Gyan serves as the guiding light on the path to liberation, leading individual to the realization of their true nature as pure consciousness and ultimate reality. नाउ फर्दर, मीमांसा फिलॉसफी में ज्ञान का क्या रोल है? जैसा कि मैं कर्म वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो मीमांसा फिलॉसफी है उसमें कर्म कांड का बहुत महत्व है. मीमांसा, वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, focuses on the interpretation of Vedas and the ritual prescribed therein. So in Mimamsa, Gyan refer to knowledge derived study from the study and interpretation of Veda, particularly ritualistic portion known as कर्म कांड. तो ज्ञान को अगर किसी रूप में समझा जा सकता है मीमांसा फिलॉसफी, तो ये कि वेदों का ज्ञान, वेदों में जो यज्ञ आदि की विधि दी गई है, जो कर्म कांड है, जो भी बताया गया है उसको फॉलो करना, उसके बारे में ज्ञान होना, वो ज्ञान है. दिस नॉलेज encompasses understanding the correct performance of Vedic ritual, the significance of sacrificial act, and the principle of dharma, duty जिसको कहा है, that governs human conduct. So Mimamsa uphold the authority of Veda as revealed scripture that contain timeless truth and guideline for righteous living. Gyan is obtained through the study and contemplation of Vedic texts, which are eternal and infallible source of knowledge. But ज्ञान से आपको लिबरेशन नहीं मिल सकती. आपको जब वेदों का ज्ञान हो जाता है, उसमें जब जो वेद विदित जो कर्म हैं, जब आप वो करते हैं, वो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं. क्योंकि मीमांसा फिलॉसफी में मोक्ष का कॉन्सेप्ट ही वो है, जैसे स्वर्ग के लिए भी यज्ञ होता है. तो ये हो गया मीमांसा फिलॉसफी. इसका डिटेल आपको कर्म वाली वीडियो में मिल जाएगा, इसके पहले जो बनी थी. इसके बाद है ज्ञान इन चारवाक फिलॉसफी. इसका मैंने क्यों कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, क्योंकि लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे नॉलेज को डिफाइन नहीं किया गया. सो चारवाक फिलॉसफी इज नोन फॉर इट्स मटेरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक व्यूज which reject the existence of transcendent reality, soul और afterlife. तो चारवाक तो वैसे भी आत्मा या मृत्यु के बाद का कोई जीवन हो, स्वर्ग हो, नर्क हो, इन सबको, या कोई ट्रांसेंडेंट रियलिटी हो, इस दुनिया के परे कोई रियलिटी हो, उनको नहीं मानते. तो जब नहीं मानते तो वो मोक्ष की भी बात नहीं करते. So therefore the concept of liberation in Charvak philosophy differs significantly from that of other Indian philosophical school. So in Charvak philosophy, liberation is not seen as a spiritual or transcendent goal to be attained through the knowledge or the spiritual practice. Instead, liberation is understood in materialistic term as a pursuit of pleasure and absence of pain in present life. तो चारवाक फिलॉसफी में आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में अगर सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो हिडोनिस्टिक फिलॉसफी है. अगर सुख मिल रहा है तो आप डेफिनेटली आप मुक्त हैं, मोक्ष युक्त हैं. और अगर आप पेन से फ्री हैं, तो मोक्ष क्या होता है? जहाँ पे दुख ना हो, बंधन ना हो. तो वो प्रेजेंट लाइफ में अगर आप इस स्टेट में हैं, तो आप मोक्ष की स्टेट में हैं. द चारवाक स्कूल एडवोकेट for a hedonistic approach to life, emphasizing the importance of maximizing pleasure and minimizing suffering in here and now. So,
आप देखिए, मैंने कर्म और ज्ञान दोनों को इंडियन फिलोसफी के जितने स्कूल हैं 9, मैंने उनके कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश की है। इसके 4 लेक्चर हैं। एंड अक्रॉस इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, ज्ञान रिप्रेजेंट द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल इंसाइट, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टीमेट रियलिटी. While each tradition offers a unique perspective on the nature and significance of knowledge, they all undergo its transformative power in liberating individuals from ignorance and leading them towards spiritual awakening and enlightenment. सो ये दो टॉपिक अभी ख़त्म हुए हैं। इसके बाद भक्ति है। भक्ति इतना डिटेल में नहीं है, क्योंकि भक्ति इंडियन फिलोसफी के हर स्कूल में इलेबोरेट नहीं है या एक्सप्लेन नहीं है। वो कुछ पर्टिकुलर इंडियन स्कूल में ही मिलता है, जैसे रामानुज का दर्शन हो गया। सो आज की वीडियो में इतना।